گوادر پورٹ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گوادر میں بحیرہ عرب پر واقع ایک گرم پانی گہرے سمندر کی بندرگاہ ہے۔ گوادر بندرگاہ کے بحیرہ عرب کے سرے پر خلیج فارس کے دہانے پر واقع ہے۔ کراچی کے مغرب میں تقریباً 460 کلومیٹر، پاکستان کی سرحد کے مشرق میں ایران سے 75 کلومیٹر اور شمال مشرق میں بحیرہ عرب کے پار عمان سے 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گوادر بندرگاہ کلیدی مقام ابنائے ہرمز کے قریب واقع ہے، جو کہ خلیجی ریاستوں کے تیل کی برآمدات کا واحد بحری راستہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ زمین بند افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں جو کہ توانائی کی دولت سے مالا مال ہیں کے قریب ترین گرم پانی کی بندرگاہ ہے۔ گوادر پورٹ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے، جو کہ دنیا کی بہت ہی کم بندرگاہوں کو یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ گرم پانی والے سمندری حصے پر تمام سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یوں تجارت اور مختلف اشیاء کو براستہ سمندر ترسیل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کے برعکس جو بندرگاہیں ٹھنڈے پانی پر واقع ہیں ان کے ذریعے تجارت کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ مختلف موسموں میں تو ان پر تجارت کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مختلف تہذیب بھی ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ اپنا پڑاؤ ڈالتی رہتی ہیں۔ ساحلی یا سمندری راستہ زمانہ قدیم سے تجارتی سلسلے کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، اور جدید تجارت نے سمندری راستے سے تجارت کی ضرورت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان سب میں پاکستان کو ایک گیٹ وے یا اہم تجارتی دروازے کی سی ہے۔ پاکستان کو بحرہ ہند میں اہم ہرموزہ ابنائے اور چھپے ہوئے خزانوں سے نوازا گیا ہے، اور دو اسلامی ریاستوں کی سرحد سے اور معاشی مرکز کے طور پر ترقی کرتی گوادر بندرگاہ نے علاقائی اور ملحقہ طاقتوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ وسطی ایشیائی راستوں کے توانائی کے وسائل تک رسائی کے لیے اپنا نہج عمل تیار کریں۔ ایران اور دبئی پورٹ ورلڈ متحدہ عرب امارات کے مفادات گوادر کی بندرگاہ کو مقابلے سے باز رکھنے میں ہیں، کیونکہ ابنائے ہرمز پر ممالک ایک گیٹ وے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں سب ممالک سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جنوبی ایشیائی، مغربی ایشیائی اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان ٹریڈ، تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کی تعمیر، ساحلی تجارت جیسے تجارتی اور صنعتی سہولتوں سے اس خطے کے تمام ممالک افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، عمان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب،
ईरान, कतर, चीन में माशी और सनती तरक्कियों के नए दौर का आगाज किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ग्वादर बंदरगाह के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तजारती लेन देन शुरू हो जाए और मुख्तलिफ ममालिक अपना सिक्का राजुल वक्त करेंसियों में लेन देन तजारत शुरू कर दें तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और इसके अलावा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे पसीमानदा सूबा है, में बहुत सारे मकामी अफराद को रोजगार मुयस्सर आ सकता है। बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को भी बेहतरीन मौके फराहम हो सकते हैं। इस बंदरगाह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक मुस्तफीद हो सकते हैं, जिनमें चीन सरे फहरिस्त है। चीन के दिफाई तजारती इलाकाई मफादात के लिए ग्वादर बंदरगाह एक बहुत अहमियत की हामिल है। चीन अब तक $198 मिलियन की सरमायाकारी से कोस्टल हाईवे तामीर कर चुका है, जो ग्वादर पोर्ट को कराची से मिलाता है। चीन इस बंदरगाह को सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी समझता है क्योंकि चीन के पास गर्म पानियों की कोई भी बंदरगाह ताहल मौजूद नहीं, जो कि तमाम साल तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जारी सारी रख सके। ग्वादर बंदरगाह का एक और अहमियत ये भी है, अगर अमेरिका अपनाए मलाका को भी बंद कर दे, जो कि एक बहुत बड़ी पोर्ट है, तो पाकिस्तान और चीन के अलावा बहरिया अरब का तजारती रास्ता हमेशा के लिए खुला रहेगा। ग्वादर बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान खलीज फारिस में तेल की तरसीद के लिए गुजरने वाले तमाम जहाज़ों की नकल व हमल को मॉनिटर भी कर सकता है। पाकिस्तान के मुताबिक कुछ अनासर इस बंदरगाह पर जारी काम की मुखालफत करते हैं। इनमें से कुछ ममालिक के बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि वो इस बंदरगाह में तामीरात नहीं चाहते। पाकिस्तान के मुताबिक इस रियासतों में भारत, इसराइल और अमेरिका शामिल हैं, जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये बंदरगाह तामीर ना हो सके, जो ग्वादर बंदरगाह की मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान इन बंदरगाह को बनाना अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत समझता है, लिहाजा तमाम खदशात को सामने रखते हुए ग्वादर पोर्ट तवानाई बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ किस्म के हादसात व दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से इस बंदरगाह पर काम जारी और आमलीन की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ फोर्सेज बिलखसूस फौज को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। के सिरे पर खलीज फारस के दहाने पर वाक़या है। कराची के मगरब में तकरीबन 460 किलोमीटर, पाकिस्तान की सरहद के मशरक में ईरान से 75 किलोमीटर और शुमाल मशरक में बहिरा अरब के पार ओमान से 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ग्वादर बंदरगाह कलीदी मकाम अपनाए हरमस के करीब वाक़या है, जो कि खलीजी रियासतों के तेल की बरामदात का वाहिद बहरी रास्ता है। इसके अलावा ये ज़मीन बंद अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों, जो कि तवानाई की दौलत से मालामाल है, के करीब तरीन गर्म पानी की बंदरगाह है। ग्वादर पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये समुंदर के जिस हिस्से पर वाक़या है वहाँ का पानी गर्म है, जो कि दुनिया की बहुत ही कम बंदरगाहों को ये खसूसियत हासिल होती है। गर्म पानी वाले समुद्री हिस्से पर तमाम साल तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला नाई के वसाइल तक रसाइल के लिए अपना लाहे अमल तैयार करें। ईरान और दुबई पोर्ट वर्ल्ड मुत्तहिदा अरब इमारात के मफादात ग्वादर की बंदरगाह को मुकाबले से बाज रखने में हैं।
क्योंकि अपनाए हरमुज पर ममालिक एक गेटवे के तौर पर काम करते हैं। पाकिस्तान गवादर बंदरगाह की वजह से खित्ते में सब ममालिक से ज्यादा अहमियत का हामिल है। जनूबी एशियाई, मगरबी एशियाई और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान ट्रेन, तेल और गैस की पाइपलाइनों की तामीर, साहिली तजारत जैसे तजारती और सनती सहूलतों से इस खित्ते के तमाम ममालिक अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, ईरान, कतर, चीन में माशी और सनती तरक्कियों के नए दौर का आगाज किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ग्वादर बंदरगाह के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तजारती लेन देन शुरू हो जाए और मुख्तलिफ ममालिक अपना सिक्का राजुल गवादर पोर्ट पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में गवादर में बहीरा अरब पर वाक़या एक गर्म पानी गहरे समुद्र की बंदरगाह है। गवादर बंदरगाह के बहीरा अरब वक्त करेंसियों में लेन देन तजारत शुरू कर दें तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और इसके अलावा बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है में बहुत सारे मकामी अफराद को रोजगार मुयस्सर आ सकता है, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को भी बेहतरीन मौके फराहम हो सकते हैं। इस बंदरगाह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक मुस्तफीद हो सकते हैं, जिनमें चीन सरे फहरिस्त है। चीन के दिफाई तजारती इलाकाई मफादात के लिए गवादर बंदरगाह एक बहुत अहमियत की हामिल है। चीन अब तक 198 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी से कोस्टल हाईवे तामीर कर चुका है, जो ग्वादर पोर्ट को कराची से मिलाता है। चीन इस बंदरगाह को सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी समझता है क्योंकि चीन के पास गर्म पानियों की कोई भी बंदरगाह ताहल मौजूद नहीं, जो कि तमाम साल तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जारी रहता है। यूं तजारत और मुख्तलिफ अशिया को बरास्ता समंदर तर्सील करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसके बरअक्स जो बंदरगाहें ठंडे पानी पर वाक़या हैं उनके जरिए तजारत करना मुश्किल होता है, बल्कि मुख्तलिफ मौसमों में तो उन पर तजारत करना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ तहजीब भी साहली इलाके के साथ साथ अपना पड़ाव डालती रहती हैं। साहिली या समुद्री रास्ता ज़माना कदीम से तजारती सिलसिले के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और जदीद तजारत ने समुद्री रास्ते से तजारत की ज़रूरत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। इन सब में पाकिस्तान को एक अहमियत एक गेटवे या अहम तजारती दरवाजे की सी है। पाकिस्तान को बहरा हिंद में अहम हरमुजा अबनाए और छुपे हुए खजानों से नवाजा गया है और दो इस्लामी रियासतों की सरहद से और माशी मरकज के तौर पर तरक्की करती ग्वादर बंदरगाह ने
علاقائی اور ملحقہ طاقتوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ وسطی ایشیائی راستوں کے